चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ओके, पेज नंबर स्क्रीन विजुअल है ना? Yes, sir, visible. पेज नंबर 51 पे आओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर 51। एंड क्वेश्चन आईडी है जो वो है 165, पेज नंबर 51। ओके, लिखा लेट x1 x2 xn बी IRD रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन दैट। ओके, बोला है कि xi या x1 x2 सो ऑन xn, this is from a random sample, this is the random variable with PMF इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x is equal to थीटा बाई 2 पावर मॉड x and 1 minus theta to power 1 minus mod x, and x equal to minus 1, okay, 0 and 1, okay, theta belong to 0 comma 1. Okay, so first suppose you take y equal to mod of xi. Okay, so what is the distribution of mod of xi? What is the range of mod xi? What is the range of y? 0, 1. Range of y equals to 0 comma 1. Okay, what is the probability y equal to 0? Y equal to 0 means probability of mod of xi equal to 0. Okay, so probability of mod of xi equal to 0, this means xi equal to 0. Okay, because in this sample x equal to take minus 1, 0 and 1 value. So xi equal to 0, this is nothing but this is equal to, here you put the value of xi, small x equal to 0, you will get 1 minus theta. Okay, fine. Now probability y equal to 1, probability y equal to n, this is equal to probability of mod of xi equal to 1. This meaning probability of xi equal to 1 or xi equal to minus 1. Okay, anyone in problem?
किसी को कोई No. दिक्कत है? ओके, सो प्रोबेबिलिटी xi इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ xi इक्वल टू -1, दिस इज इक्वल टू व्हाट? This is equal to theta by 2, okay, and this is equal to theta by 2. Put the value in this PMF, okay. Where you put x equal to -1, so you will get theta by 2. This quantity go to 0, and while you put x equal to 1, this quantity theta by 2 and this quantity go to 0, because this is 1 minus 1, and this is go to not 0, sorry, this is go to 1. 1 minus theta to power 0, this is go to 1, and when you put x equal to 1, this is theta by 2, and when you put x equal to -1, this is theta by 2, and this is go to 1, okay, because power is 0. So this is theta by 2 plus theta by 2, so this is equal to theta. So here y is that type of random variable. This is equal to when y equal to 0, its probability is equal to y equal to 1 and y equal to 0 with probability equal to theta and probability equal to 1 minus theta. So this, what is name of this random variable? This is a well-known random variable. Okay, Bernoulli. this is Bernoulli. So y equal to mod of xi. This follows Bernoulli theta. Okay, सबको समझ में आया ना कि y इक्वल टू मॉड xi क्या फॉलो करेगा? अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अब एक वेल नोन प्रॉब्लम है। अब हमारा क्या हुआ कि देखो, अब जहाँ पर मॉड xi है, मॉड xi, वहाँ तुम y पुट कर दो, yi पुट कर दो, yi इक्वल टू मॉड ऑफ xi है, सपोज ये प्रूव किया, और ये फॉलो करा तुम्हारा बर्नौली थीटा को। अब हमारी प्रॉब्लम चेंज हो गई। प्रॉब्लम ये हुआ कि अब yi बर्नौली थीटा को अगर फॉलो कर रहा है, तो तुम सिंपल बता सकते हो कि भाई जब yi बर्नौली थीटा को फॉलो करता है तो समेशन yi, this is complete sufficient for Bernoulli. This is complete sufficient for theta in case of Bernoulli. ये तो कई बार प्रूफ हो चुका ना कि बर्नौली के केस में ये समेशन वाई आई कंप्लीट सफिशिएंट होता है। दिस मीन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई कंप्लीट सफिशिएंट होगा। फॉर थीटा, सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, एंड सेकेंड ऑप्शन से 1 upon n summation xi is MLE of theta. सेकेंड ऑप्शन में उसने बोला कि 1 upon n summation i इक्वल टू 1 to n xi is MLE of theta. तो ये ट्रू होगा या फॉल्स? तो फॉल्स होगा क्योंकि मॉड xi सर x बार होता है MLE। बर्नौली के केस में MLE x बार होता है। अब जिसको नहीं पता कि बर्नौली के केस में MLE क्या होता है, वो जाए बर्नौली डाउनलोड करना, बर्नौली PDF MLE एंड कंप्लीट सफिशिएंट, वो आ जाएगा फाइल खुल के, उसको पढ़ लेना, या किसी वेल नोन बुक जैसे SC गुप्ता, BK कपूर देखना, उस पर मिल जाएगा। इन्फेंस की बहुत सारी बुक है, उस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो x बार होता है MLE, ठीक है, x बार होता है। x बार मतलब बर्नौली के केस में, तो बर्नौली यहाँ y आई है ना, तो y बार होगा ना MLE, तो y बार इक्वल टू व्हाट? y बार इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन i y आई, समेशन i इक्वल टू 1 to n y आई, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन ऑफ मॉड x i, i इक्वल टू 1 to n, सो दिस इज MLE। ओके, अब उसने बोला है कि 4 नंबर, दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर। थर्ड तो ट्रू हो गया, सेकेंड फॉल्स हो गया। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ उसने बोला है 1 अपॉन n समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 to n, दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा, दिस इज अनबायस्ड फॉर थीटा। तो चेक करो इसको, जब इसका तुम एक्सपेक्टेशन टेक करोगे 1 अपॉन n का, एन समेशन एक्स आई इक्वल टू 1 to n, तो एक्सपेक्टेशन इज अ linear function, so this is nothing but this is equal to expectation of xi, and xi का एक्सपेक्टेशन क्या होगा बताओ? xi तुम्हारा क्या है? xi का जो डिस्ट्रीब्यूशन है
ये है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इक्वल टू एक्स, ये है तुम्हारा थीटा बाई टू पावर मॉड एक्स एंड 1 माइनस थीटा बाई 1 माइनस मॉड एक्स, एंड एक्स की जो रेंज है वो है तुम्हारा -1 0 एंड 1। इसका जो एक्सपेक्टेशन आएगा क्या आएगा, जो इसका एक्सपेक्टेशन आएगा एक्स आई का वो क्या होगा, सर थीटा बाई टू, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई थीटा इक्वल्स बाई टू टू, when you put 0 this all quantity go to 0, when you put 1 this quantity go to, this is summation of xi, probability of xi equal to 1, when you put -1 it will be theta by 2, 0 होगा ना इसका, थीटा बाई टू क्या होगा, -1 पुट करोगे तो माइनस थीटा बाई टू आएगा, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगी क्वांटिटी, लेकिन जब तुम 1 पुट कर दोगे तो ये थीटा बाई टू हो जाएगा, ये तो 0 आएगा ना। यस सर, जीरो वाला नहीं पुट करते सर। ये 0 आएगा, इसका एक्सपेक्टेशन क्या आएगा 0, तो एक्स आई का एक्सपेक्टेशन 0 है तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर कहाँ हुआ थीटा का, लेकिन अगर यहाँ मॉड एक्स आई कर देगा तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा, ये चेक करना तुम 1/n समेशन मॉड ऑफ एक्स आई, ये तुम्हारा अनबायस्ड हो जाएगा, दिस एस्टिमेटर इज अनबायस्ड। बात समझ में आई है, एक्चुअली में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में थोड़ा पीडीएफ में बस वो तो पीएमएफ में वो चेंज था, इसने एक्चुअली में पीएमएफ को थोड़ा चेंज कर दिया। सर ये 1 माइनस थीटा वाली टर्म भी आएगी, वाई 1 माइनस थीटा वाली, हाँ सॉरी सर नहीं है, 1 माइनस थीटा गो टू 1 ना, 1 माइनस थीटा टू पावर 1 माइनस 1 जीरो, ये पावर जीरो है तो 1 की ओर टेन कर जाएगा ना, 1 हो जाएगा ना इसकी वैल्यू, हाँ यस यस, और जीरो वाले टर्म में पूरा क्वांटिटी जीरो, बिकॉज एक्स की वैल्यू जीरो है। ओके तो ये आप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारा फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट नीचे जो क्वेश्चन है वो पॉइसन प्रोसेस का बाद में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो तुम लोग कर चुके हो ना, ये क्वेश्चन में तो डायरेक्ट थ्योरम लगेगी। जैसे उसने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर है 53 एंड क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 एंड क्वेश्चन आईडी है तुम्हारी, क्वेश्चन आईडी है तुम्हारी 322167, ये आईडी है क्वेश्चन की, पेज नंबर है 51 में, ठीक है। क्वेश्चन बोला लेट x1 x2 xn बी आईआईडी फ्रॉम पॉइसन लेम्डा, xi तुम्हारा जो है ये रैंडम सैंपल है पॉइसन लेम्डा से, ओके, एंड लेम्डा ग्रेटर 0, ओके। कंसीडर टेस्टिंग, टेस्टिंग क्या प्रॉब्लम दी है इसमें, टेस्टिंग प्रॉब्लम दी है तुम्हारी h नॉट लेम्डा लेस आर इक्वल टू लेम्डा नॉट वीएस या अगेंस्ट जो भी दिया हो, वर्सेज दिया है, ठीक है, वर्सेज h1 लेम्डा ग्रेटर लेम्डा नॉट। तो मैंने बताया था ना कि इस टेस्टिंग प्रॉब्लम में तुम्हें क्या करना है, इसमें जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा वो क्या होगा, ये एमएलआर होगा सर, तो सर इसका सॉल्यूशन एक्सआई ग्रेटर देन के, अब ये टी एक्स इक्वल टू जो होता है ये समेशन ऑफ एक्स आई के टर्म में एम एल आर होगा। अब ये तुमको चेक करना पड़ेगा, जब पॉइसन फैमिली होगी तो समेशन एक्स आई में एम एल आर होगा, और मैंने बोला था ना कि इसका जो यूएम क्रिटिकल रीजन हम लिखेंगे वो अल्टरनेटिव के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो इसका जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो ग्रेटर के टाइप आएगा, मतलब ग्रेटर के, ये क्रिटिकल रीजन आएगा। तो उसने यही बोला है कि टेस्ट ए बी द टेस्ट दैट रिजेक्ट्स एच नॉट इफ समेशन एक्स आई ग्रेटर के व्हेन के इज सच दैट दिस इज इक्वल टू अल्फा, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, भाई अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू जो होगी ये क्रिटिकल रीजन हो गया, क्रिटिकल रीजन ग्रेटर गिवन लेम्डा इक्वल टू लेम्डा नॉट, दिस इज बिलोंग टू null hypothesis, so this is equal to alpha, this is type 1 error।
सो ये फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा ए टेस्ट जो है ये तुम्हारा यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा बाय थ्योरम। अब ये थ्योरम मैं 2-3 बार लिखवा दिया हूँ, ठीक है, तो देख लेना ये थ्योरम हो गया। अब उसने बोला है कि टेस्ट ए इज लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फॉर साइज अल्फा। ओके, तो इसमें पहला ऑप्शन तो पहले ऑप्शन में अभी डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन ट्रू हो गया, फोर्थ रॉन्ग हो गया, ठीक है, थर्ड ट्रू हो गया, फोर्थ रॉन्ग, थर्ड ट्रू फोर्थ। अब देखो, अब उसने बोला लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट होता है वो कैसे हम फाइंड करते हैं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, बताओ। सर ये लाइक्लीहुड का रेशियो होता है। अंडर न्यूमरेटर में अंडर एच नॉट होता है, डिनोमिनेटर में एम एल ई होता है, मतलब होल पैरामीटर स्पेस। इसका जो रेशियो होता है वो लाइक्लीहुड रेशियो होता है। लेमडा ऑफ एक्स कल दिस इज इक्वल टू एल ऑफ mu given x कल, this is mu naught, okay, this is under h naught and this is under h1 we use mle, okay, अगर if parameter is not specified we use mle, okay। ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर में अगर पैरामीटर स्पेसिफाइड नहीं है तो वहां हम mle का यूज करते हैं ना। यस सर। पैरामीटर अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो mle का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन जो होगा इस फैमिली के लिए वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, दिस इज योर लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ लेमडा। सो आई इक्वल हियर यू नॉट राइट म्यू नॉट बिकॉज यू कंफ्यूज एल ऑफ लेमडा नॉट गिवन एक्स कल एंड यू पुट एल ऑफ लेमडा नॉट कैप estimate of lambda naught, okay। So this is I equal to 1 to n, this is nothing but this equal to e to power minus n lambda and lambda to power summation xi divided by product of xi, I equal to 1 to n factorial. This is your likelihood function, okay। So here you put the value of under, this is under h naught, under h naught, सर बोलो। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से ही तो यूएमपी टेस्ट मतलब मिलता है सर ना। वो सही है, ऑप्शन ए ही ट्रू होगा, मतलब ए ही ट्रू होगा, बात तुम्हारी सही। यूएमपी टेस्ट जो होता है वो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से ही मिलता है, ये बात सही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ लाइक्लीहुड, जैसे जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूँ। दिस इज अंडर अंडर एच वन, ओके। देखो इसमें एक्चुअली में उसके कहने का मतलब ये था कि जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट आता है वो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से ही मिलता है, ठीक है। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जो बताएगा वहीं से यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट बताते हैं। तो अगर यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ए है तो क्यों नहीं ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट होगा, तो ए ऑप्शन ही ट्रू होगा, मतलब ए ही लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट होगा। लेकिन जिसको लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे इसको सॉल्व करेगा। सर ए यूएमपी और लाइक्लीहुड दोनों होगा ना सर। हाँ, ए यूएमपी और लाइक्लीहुड दोनों होगा। Okay, so here your value of lambda x cul, this is equal to what, this is equal to e to power minus n lambda naught and lambda naught to power summation xi divided by product of xi factorial, and this is divided by what, e to power minus n, what is the value of lambda, एक्स बार x bar, okay, and x bar to power summation xi divided by product of xi factorial. So you will, this will be cancel out.
अब क्या करोगे, जैसे लेमडा ऑफ एक्स आ गया, इसका कुछ रेशियो आ गया, इसके रेशियो क्या करते हैं बताओ? दिस इज लेस के और ग्रेटर के, बोलो। लेस देन होता है सर, रिजेक्शन रीजन। बिकॉज यहाँ पर हमने एल नॉट अपान, आप देखो यहाँ नेमन पियर्सन लेमा एल नॉट अपान एल वन होता है, ये लेस के होता है, लेकिन अगर एल वन अपान एल नॉट करेंगे तो ये ग्रेटर के होगा। ठीक है, ये नेमन पियर्सन लेमा कहती है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हमारा टेस्टिंग हमारा सिंपल हाइपोथेसिस की ना होकर कंपोजिट हाइपोथेसिस की होती है, तो हम लोग उसको सिंपल हाइपोथेसिस से पहले चेंज करते हैं। ठीक है, जब सिंपल हाइपोथेसिस में चेंज हो जाएगा तो वहाँ पर हम लोग नेमन पियर्सन लेमा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेमन की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है एक बार, नेमन पियर्सन लेमा। तो ये रेशियो लिख देना, तो जब तुम ये रेशियो लिखोगे तो यहाँ एट लास्ट जो आएगा वो आएगा समेशन ऑफ एक्स आई ग्रेटर के, इस टाइप में तुम्हारा, और के कांस्टेंट हो सकता है कोई भी। ठीक है, अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो इसी टाइप में तुम्हारा क्रिटिकल रीजन मिलेगा। ठीक है, ये लेमडा एक्स की जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू जो आई है उसको तुम पुट करोगे जब, तो फाइनली तुम्हारा जो आएगा वैल्यू वो समेशन एक्स आई ग्रेटर के टाइप में आएगी, या फिर एक्स बार ग्रेटर के आ सकती है। कंफ्यूज मत होना, एक्स बार ग्रेटर के आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स बार ग्रेटर के को तुम समेशन एक्स आई लिख सकते हो, बिकॉज हियर 1/n समेशन एक्स आई, एंड n को अगर तुम इधर ले जाओगे तो एक कांस्टेंट नया मिल जाएगा बस। ठीक है ना, तो ये दोनों हो सकता है। ठीक है, एक्स बार एन समेशन एक्स आई। ओके, सो इसमें पहला ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जो मिलेगा वो भी एक में, मतलब टेस्ट ए ही डिसाइड करेगा। अब मैं टेस्ट बी लिख देता हूँ। ठीक है, टेस्ट बी एक्चुअली में ये लिखा था, टेस्ट बी जो लिखा था वो लिखा था समेशन ऑफ एक्स आई लेस के, ये टेस्ट बी था। ठीक है, ये लेस के था, एंड यहाँ पर जो हम लोग साइज दे रहे थे वो दे रहे थे समेशन ऑफ एक्स आई लेस के गिवन एल लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट इक्वल टू अल्फा। तो ये ना तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, एंड ना ही ये तुम्हारा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है। ठीक है, ये ना तो ये है और ये ना ही। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सपोज द हजार्ड। ओके, रिलायबिलिटी का इसको बाद में करेंगे। ठीक है, बेजियन इन्फ्लुएंस, रिलायबिलिटी एंड अदर टॉपिक। इन्फ्लुएंस खत्म कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस के बाद स्टार्ट करेंगे बेजियन इन्फ्लुएंस। ठीक है, बेजियन स्टैटिस्टिक। बेजियन पढ़े पहले कि मल्टीवेरिएट पहले? मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट, ओके। मल्टीवेरिएट। तो मल्टीवेरिएट पहले स्टार्ट करेंगे, मल्टीवेरिएट के बाद रिग्रेशन पढ़ा देंगे। मल्टीवेरिएट एंड रिग्रेशन दोनों साथ में होगा। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस और मल्टीवेरिएट साथ में, रिग्रेशन एनालिसिस में मल्टीवेरिएट काफ़ी यूज होता है। ठीक है, इसके बाद मल्टीवेरिएट रिग्रेशन हो गया, इसके बाद स्टार्ट करेंगे स्टोकास्टिक्स, देन बेजियन एंड रिलायबिलिटी। स्टोकास्टिक और रिलायबिलिटी एक साथ करेंगे। ठीक है, स्टोकास्टिक सर रिलायबिलिटी, बोलो। एनोवा थोड़ा पहले, एनोवा टॉपिक भी पहले था। अच्छा, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन के बाद इनोवा ही कर लेंगे। ठीक है, इनोवा में कुछ चीज़ें ही आती हैं एक्चुअली में। इनोवा का सिलेबस तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन हमें पीवाईटी ही डिस्कस करना है, तो कुछ चीज़ें ही आती हैं। तो वहाँ पर क्या है, थ्योरम्स याद करो। अगर इनोवा तुम्हें बहुत बेसिक, बहुत अच्छे से जानना है तो सलभ सर के वीडियो पढ़े हैं इनोवा के। आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर हैं सलभ श्रीवास्तव। ओके, ओके। एंड तुम डालोगे सलभ इनोवा बाई सलभ सर, तो उसमें स्वयं प्रभा में उन्होंने पढ़ाया है इनोवा। ठीक है, उस पर शायद उनका एबव 50 वीडियो उन्होंने बनाया है इनोवा पे, तो तुम्हें पूरे वीडियो मिल जाएंगे एकदम डिटेल। ठीक है, और उनका नोट्स भी अवेलेबल है, मतलब उनका लेक्चर स्लाइड होगा प्लस वीडियो लिंक होगा, तो दोनों तुम डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बेसिकली मैं उसी को फॉलो करूँगा, अगर मैं पढ़ाऊँगा इनोवा तो सलभ सर को ही, क्योंकि उन्हीं से हम लोगों ने पढ़ा है, तो सलभ सर को ही फॉलो करूँगा। ओके सर। ओके, सर बोलो।
रिसेंटली अभी ग्रुप पे किसी ने पीडीएफ भेजा था सिलेबस को लेके स्टैटिस्टिक्स में सीएसआईआर वो मेरे पास ऐसा कोई न्यूज है नहीं सीएसआईआर का। मैं भी कंफ्यूज था उस न्यूज को देखकर। मैंने एक दो दोस्तों यस से पता किया तो उन्होंने बोला ऐसा तो हमने सुना नहीं है। सर, क्योंकि वेबसाइट मैंने भी चेक किया था, वहाँ पे ऐसा कुछ तो मेंशन था नहीं। नहीं नहीं, ऐसा वो मैंने सुना, फिर इसने उसमें किसी ने कमेंट किया था दिस इज 80% आईएसएस सिलेबस। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके मैंने ओके। देखा तो ऐसा कोई मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं सीएसआईआर की। लेकिन ये पता है कि यूजीसी ने रूल चेंज किए हैं। रूल उसने एक रूल ये पता है कि पहले यूनिवर्सिटी अपना इंडिविजुअल एग्जाम लेती थी, मतलब उसके लिए। अब रूल क्या यस सर। हुआ है कि उसने बोला है कि आप जेआरएफ के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। अब यूनिवर्सिटियाँ कोई अपना इंडिविजुअल एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाएगी, ये यस बोला सर। है सर, उसने। अभी अभी की डेट में नेट को सब 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हाँ गया हाँ, है। उसने नेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। यस, 2 को तो स्कॉलरशिप मिलेगा, पर थर्ड जो कैटेगरी में बिलोंग करेगा उसको नहीं उसको मिलेगा, उसको बट वो स्कॉलरशिप पीएचडी नहीं मिलेगा हो एंड वो सकता पीएचडी कर सकता है। जैसे यूनिवर्सिटियाँ क्या करती थी कि थोड़ी स्कॉलरशिप दे देती थी, मान लो 8-10 हज़ार 12 हज़ार जो भी हो उसका। है। यस इतनी सर। स्कॉलरशिप में जैसे बीएचयू अपना रेट एग्जाम लेती थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना क्रेट एग्जाम लेती है, अदर अदर यूनिवर्सिटी अदर अदर एग्जाम लेती थी ना, तो ये शायद अब नहीं होगा। अब यूजीसी नेट के थ्रू ही सब लोगों की पीएचडी होगी। यस सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 एंड पेज नंबर है 54। ओके, 56 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन आईडी देख लेना, एक्चुअली में इसमें नंबरिंग पड़ा है तो मैं क्वेश्चन नंबर लिख दे रहा हूँ। एंड पेज नंबर है 54। दिस इज पेज नंबर। एंड क्वेश्चन है लेट x1 x2 सो ऑन आईआईडी विथ मीन म्यू। xi तुम्हारा आईआईडी है विथ मीन म्यू। इसका जो मीन है दिस इज इक्वल टू म्यू। एंड जो वेरिएंस है वह सिग्मा स्क्वायर, दिस इज वेरिएंस। फिर इसने बोला जेड एन इक्वल टू x1 प्लस सो ऑन xn स्क्वायर। जेड एन इक्वल टू x1 प्लस सो ऑन xn स्क्वायर डिवाइड बाई n। Then which of the following are true? Zn is converged to mu with probability 1. Zn is converged to mu square with probability 1. इसका मतलब क्या हुआ? Zn कन्वर्ज करे प्रोबेबिलिटी म्यू स्क्वायर पे। Zn कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू स्क्वायर with probability 1. This meaning what? This meaning Zn converge in probability to mu square. ओके, बिकॉज कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। यही तो होता है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का मतलब। भाई कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है ना कि अगर उसमें कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो अब बताओ जेड एन कन्वर्ज इन म्यू स्क्वायर विथ प्रोबेबिलिटी 1 ये ट्रू है या फॉल्स है? सर एन जेडन होना चाहिए ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? जेड एन इक्वल टू सर, समेशन ऑफ इसमें म्यू को कोई स्पेसिफाई किया गया नहीं है, नॉन जीरो है कि जीरो है, तो गलती होना चाहिए। सर अच्छा, एक्स बार कन्वर्टिंग टू प्रोबेबिलिटी टू म्यू, एक्स बार स्क्वायर कन्वर्टिंग टू प्रोबेबिलिटी टू म्यू स्क्वायर, तो सर एन जेडन, सर एन जेडन कन्वर्जेस टू म्यू स्क्वायर। देखो इसके कहने का मतलब ये था कि एक्स बार कन्वर्जन इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू दिस इज बाय बी क्लास ऑफ लार्ज नंबर। दिस इज बाय बी क्लास ऑफ लार्ज नंबर and x bar square is a continuous function of x square. So here we apply the continuous mapping theorem of convergence in probability. So x square is converge in probability to mu square, and write the x square in term of zn. You will get n zn,
because this is nothing but this is equal to 1 n upon summation of xi square divided by n square, and summation of xi divided by n square, this is equal to n of summation x bar square. ओके, सो यार Zn बाई n होगा ना, Zn बाई n होगा. ओके, दिस इज Zn बाई n. Yes, sir. This is conversion in probability to mu square. This is by continuous mapping theorem. Okay, continuous mapping theorem मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या होता है continuous mapping theorem. Okay, so continuous mapping theorem is continuous mapping theorem. Suppose your xn converge in probability to something x. Okay, so you define h dot. This is a function of this is h dot is a continuous function of xn, is a continuous function of xn. Okay, then your h of xn, this is converged in probability to h of x. This is continuous mapping theorem. Okay, मतलब continuous मैपिंग थ्योरम का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई प्रॉपर्टी में मान लो एक्सन है जो कि एक्स पर कन्वर्ट कर रहा है, तो अगर कोई फंक्शन है कंटीन्यूअस मैपिंग, मतलब कोई एक्सन का कंटीन्यूअस फंक्शन है तो वो उसी फंक्शन में कन्वर्ट कर जाएगा. जैसे एक्सन है तो एक्सन बार स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर जाएगा, ई टू पावर एक्सन ई टू पावर एक्स पे कन्वर्ट कर जाएगा, log ऑफ एक्सन log ऑफ एक्स पे कन्वर्ट कर जाएगा. ओनली कंटीन्यूअस फंक्शन होना चाहिए. ठीक है, कंटीन्यूअस मैपिंग थ्योरम समझ में आई. कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी जब पढ़ना उसमें बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं, तो कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी में थ्योरम सी यूज आती हैं. अब जैसे मान लो कंसिस्टेंसी में, एक्चुअली में जब कंसिस्टेंसी में होता है ना, कंसिस्टेंसी जब तुम लोग प्रूव करते हो ना, तो वहाँ जैम में एमएसक्यू क्वेश्चन कुछ नहीं बनता है, एमएसक्यू क्वेश्चन कुछ नहीं होता. जैसे उसने एक पॉइंट ले लिया, उसने बोल दिया कि एक्स एन बार कन्वर्ज इन म्यू. अब वो क्या करेगा कि यहाँ पर एक कंटीन्यूअस फंक्शन रख देगा एक्स का, और फिर उसको कंटीन्यूअस फंक्शन है तो इसको कंटीन्यूअस मैपिंग थ्योरम लगा के यहाँ कन्वर्ज करा देगा किसी पॉइंट पे. मान लो ई के पावर एक्स कर लिया, एक्स बार कन्वर्ज करा तो ई के पावर एक्स बार तुम्हारा ई के पावर म्यू पे कन्वर्ज करेगा. अब बच्चा क्या होगा कि कंफ्यूज हो जाएगा कि ई के पावर एक्स बार को हम ई के पावर म्यू पे कैसे कन्वर्ज कराएं, कैसे कंसिस्टेंट बताएं कि ई के पावर एक्स बार कंसिस्टेंट होगा या कन्वर्ज करेगा इन प्रोबेबिलिटी में. तो यहाँ पर उसने कंटीन्यूअस मैपिंग थ्योरम का यूज किया. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा ट्रू नहीं हुआ. अब सेकंड उसने बोला है कि म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो देन Zn कन्वर्ज इन इन्फिनिटी विथ प्रोबेबिलिटी 0. सेकंड उसने बोला है कि अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 है देन तुम्हारा Zn इन्फिनिटी में कन्वर्ज करेगा. विथ Yes, sir, प्रोबेबिलिटी 1. true. ये ट्रू है बिकॉज तुम्हारा Zn अपॉन n जो है ये म्यू स्क्वायर पे कन्वर्ज कर रहा है, Zn अपॉन n. तो अब मुझे बताओ जब तुम n को इधर ले जाओ, n एक कांस्टेंट है, n को इधर ले जाओगे तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, एंड दिस इज अ इनफाइनाइट. सो ये इनफाइनाइट है तो ये Zn इनफाइनाइट पर ही तो कन्वर्ज कर जाएगा, मतलब ये डाइवर्जेंस सीक्वेंस हो जाएगी. ठीक है, अब उसने बोला इफ म्यू इक्वल टू 0, अगर म्यू तुम्हारा 0 है, इफ म्यू इक्वल टू 0 देन तुम्हारा Zn अपॉन सिग्मा स्क्वायर दिस इज कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये तुम्हारा कन्वर्ज करेगा डिस्ट्रीब्यूशन में. दिस इज कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन. मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या. कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन पहले फाइंड करते हैं. ठीक है, कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन
बताओ भाई इसको कैसे करेंगे? बोलो। Chi square में चेंज करो। काई स्क्वायर वो 0 है सर। तो काई स्क्वायर कैसे कन्वर्ट तुम करा रही है? नॉर्मल से है क्या? बताओ ये काई स्क्वायर कन्वर्ट करेगा कि नहीं? सर नॉर्मल नहीं है। देन आईआईटी दिया है। तब बताओ काई स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करा? सर chi square नहीं होगा। और कोई बताना चाहे बताओ। पहले इसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम से इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाओ, क्या होगा? सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम लार्ज एन के लिए, अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? बोलो। यस सर। अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम से लार्ज एन के लिए अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहा है तो स्क्वायर का स्क्वायर कन्वर्ट कर जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि बिकॉज तुमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम से पहले प्रूव कर दिया कि नॉर्मल है। जो बताई है कि काई स्क्वायर प्रूव करेगा उसके थ्रू उसमें प्रॉब्लम नहीं थी कि तुमने काई स्क्वायर बता दिया। बट व्हाई काई स्क्वायर? बिकॉज ही आर नॉट गिवन दिस इन नॉर्मल। सो पहले तुम्हें नॉर्मल प्रूव करना पड़ेगा बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अगर तुम ये बोलती कि बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम दिस क्वांटिटी गो टू नॉर्मल देन दिस स्क्वायर गो टू काई स्क्वायर देन दिस इट विल फाइन। तो इसमें क्या होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट? मतलब एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का मतलब जरूर नॉर्मल 0 1 वेरिएट क्या होगा इसका? बताओ। इसका नॉर्मल वेरिएट होगा जो वो होगा x1 प्लस x2 plus so on plus xn minus mean and divided by this variance. This variance is equal to what? Variance का अंडर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट एन सिग्मा। ओके, दिस इज गोज टू नॉर्मल 0,1 बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम। दिस इज बाय CLT। अब जिसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम नहीं पता हो पहले देख ले यहाँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है इफ x1 x2 so on xn be IID random variables with mean mu and variance sigma square less if infinite, then xi minus mu, या फिर तुम समीशन कर दो या फिर x बार कर लो, x बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा अपान रूट एन, दिस गोज टू नॉर्मल 0,1 इन डिस्ट्रीब्यूशन एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये होती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, अगर समेशन एक्स आई करोगे तो चेंज हो जाएगा, एक्स बार को तुम समेशन एक्स आई भी कर सकते हो। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम में कई थ्योरम्स आती हैं। एक आती है लिंडरबर्ग एंड लियोपनाव कंडीशंस, एक आती है डिमॉल लाप्लास थ्योरम। तो ये तुमको पढ़ना पड़ेगा। एक आईआईडी के केस में डिफाइन नहीं होता, एक इंडिपेंडेंट अगर आइडेंटिकल नहीं है तो डिफाइन हो जाएगा, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिफाइन होगा।
ये बेसिकली मैंने सेंट्रल लिमिट थ्योरम बता दिया। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम में कई पार्ट आते हैं, ठीक है, उसकी कंडीशन देखना पड़ेगा तुम लोगों को। तो वो मैंने पीडीएफ भेजा था शायद एक बार, सेंट्रल लिमिट थ्योरम कैसे या इक्वालिटी, अच्छा मैंने भेजा था, एक बार देख लेना, जब अगर ना मिले तो मुझे बताना, मैं भेज दूँगा। ओके, तो इसका फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज अगर थर्ड ट्रू है तो फोर्थ नॉर्मल जीरो का रहा तो वो तो फॉल्स हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन 0 होगा क्या? नहीं, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, और 0 होगा ये। एन ये क्या लिखा है? ये लिखा है एक जेड का स्क्वायर ना, और जेड तुम्हारा ये है, इसी इक्विवेलेंट टू जेड। यस यस So this is converging chi square 1. So this is converging distribution. कोई दिक्कत है किसी को? मैथ के जो स्टूडेंट हैं एक बार पूछ लें, ठीक है, थोड़ा मैं तेज हो सकता हूँ, लेकिन एक बार पूछ लेना, ठीक है, बिकॉज सिलेबस अभी है मेरे पास, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, यूआईक्यू मतलब काफ़ी ईयर के ले लिए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश करो कि खुद से भी मतलब चीज़ों को बस तुम कॉन्सेप्ट सीख लो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो एक बार डिस्कस कर ले, बाकी मैं पीवाईक्यू सारे करा दूंगा। कॉन्सेप्ट एक बार तुम सीख लो खुद से। जैसे मैं एक यूएमबी का मैंने एक फाइल भेजा था, अगर फाइल नहीं होगा तो मैं अभी सेंड करूँगा आज वो, और मैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का भी एक फाइल भेज दूंगा, उसमें तुम्हें वेल नोन प्रॉब्लम जो होती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की वो मिल जाएगी, ठीक है, वो वाली प्रॉब्लम वो मैं भेज दूंगा। एंड यूएमबी हो गया, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मल्टीवेरिएट में जो वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन होंगे तो वो मैं भेज दूंगा लिख कर। रिग्रेशन में भी जो चीज़ यूज होगी वो लिख कर दे दूंगा। एंड बेजियन में भी जो ऐसे यूज होगा वो लिख कर दे दूंगा। इनोवा में भी जो यूज होगा लिख के दे दूंगा। जो थ्योरी मुझसे हो सकेगी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर तुम्हें देखना है तो मैंने इनोवा बता ही दिया। मल्टीवेरिएट भी जिसको पढ़ना है तो उसमें आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर अमित मित्रा एंड शर्मिष्ठा मैम, उन्होंने अपने वीडियो डाल दिया नेप्टल पे, ठीक है, उनके वीडियो पड़े हैं नेप्टल पे, वो देख लेना। रिग्रेशन का वीडियो तुम्हें नेप्टल पे नहीं मिलेगा, लेकिन रिग्रेशन का नोट्स सलब सर का मिल जाएगा। और रिलायबिलिटी नहीं मिलेगा, सर्च करने के बाद नेप्टन में रिलायबिलिटी मिलेगा, बट वो रिलायबिलिटी प्योर स्टैटिस्टिक की ना होकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी स्टैटिस्टिक कोर्स चलता है कहीं कहीं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में शायद कहीं रिलायबिलिटी का यूज होता है, तो वो रिलायबिलिटी पड़ी होगी वो। बाकी मैं रिलायबिलिटी डिस्कस कर दूंगा, रिलायबिलिटी में इतना क्वेश्चन टफ आता नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे, इस बार जैम में क्वेश्चन आया था, ट्राई करना। क्वेश्चन था कि अगर एक f1x is a PDF which follows normal 0, 1, okay, and f2x is a PDF of normal 0, 6, and B define a random variable y is such that random variable define कर रहे हैं एक random variable y को, रैंडम वेरिएबल y को डिफाइन किया उसने 0.6 f1x प्लस 0.4 f2x, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, उसने x लिखा है यहाँ पर, डिफाइन है रैंडम वेरिएबल y, और y तुम्हारा x वैल्यू टेक कर रहा है, वो ये बोला कि y x वैल्यू टेक कर सकता है और y ऐसा रैंडम वेरिएबल है, ओके। दिस इज माइनस इनफाइनाइट से, इसकी रेंज जो है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, मतलब रियल नंबर पे। तो उसने बोला वेरिएंस ऑफ y क्या होगा, बताओ वेरिएंस ऑफ y क्या होगा। ऑप्शन था 3, 3.5, 9 एंड 1। ऑप्शन कुछ जैम से हो सकते हैं, लेकिन एक दो हो सकते हैं मैंने खुद से वो कर दिया, मुझे याद नहीं है, लेकिन आंसर याद था तो कर दिया। लेकिन ये 3 ऑप्शन तो हैं, चौथा ये वाला कंफर्म नहीं है कि नहीं, लेकिन आंसर इसमें लिखा है। बताओ वेरिएंस ऑफ y क्या होगा। इंडिपेंडेंट दिया नहीं है, पहले याद रखना, इंडिपेंडेंसी की कोई बात नहीं किया।
उसने इंडिपेंडेंसी की कोई बात नहीं किया, ठीक है? ये नहीं कि तुम बोल दो कि दिस इज़ इंडिपेंडेंट। अब सोचो जैम का बच्चा ये क्वेश्चन लगा आया होगा, मैं इतना जानता हूँ जैम के बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। बोलो अगर आ रहा हो तो, नहीं फिर मैं इसको होमवर्क में लिखो, कल करके लाना, जब ना आए तो फिर मुझसे पूछना। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है यार, देख लेना अगर सर 3 आएगा। हाँ 3 3 आएगा। बोलो कैसे 3 आया तुम्हारा? सर मैंने ई ऑफ एक्स निकाल दिया और ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल दिया, फिर बैलेंस निकाल दिया, फिर ई ऑफ एक्स 0 आ गया और ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकल गया, तो वो वही मतलब वेरिएंस हो गया। ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया? सर ई ऑफ एक्स स्क्वायर ही 3 आया है और ई ऑफ एक्स 0 आया है, तो सर ई ऑफ एक्स स्क्वायर ही ई वेरिएंस ऑफ हो एक्स गया स्क्वायर सर। कैसे फाइंड किया? सर जैसे सर वाई का सर वाई ई ऑफ वाई स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 0.6 स्क्वायर और सर ई ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में रख देंगे प्लस 0.4 स्क्वायर और ई ऑफ मतलब f2 स्क्वायर का जो ई ऑफ एक्स स्क्वायर है, फिर दोनों का f2 मतलब 0.36 इंटू 1 यस सर प्लस प्लस जो 0.16 इंटू 6 into 6 यस सर तो 0.96 एंड 0.36 सर 0.94 0.64 प्लस 0.36 क्यों? अच्छा ये कर रही हो तुम 0.6 प्लस तुमने ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड किया? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड किया? दिस इज इक्वल टू, बताओ बोलो। कोवेरियंस का रिटर्न सर एक और डाला है। क्या हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या? यस सर आंसर तुम्हारा राइट है, 3 ही आएगा। सर मैंने किया था ये क्वेश्चन जैब के पेपर में सर 3 आया था तो कैसे 3 आया था? सर 3 से याद नहीं आ रहा। जानते हो 3 कैसे आया? देखो एक चीज तुम लोगों को नहीं पता होगी कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल, मान लो y ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो कि तुम्हारा 0.6 एंड f1 ऑफ x ये रैंडम वेरिएबल है, प्लस 0.4 f2x ये रैंडम वेरिएबल है। ओके, तो ये भी एक रैंडम वेरिएबल है, ये भी एक रैंडम वेरिएबल है, तो मैं इसको कह देता हूँ दिस इज x1 एंड दिस इज x2, फाइन। एंड योर x1 फॉलो नॉर्मल 0 एंड x2 फॉलो नॉर्मल 0,6। this is normal 0 comma 1 and this is normal 0 comma 6. Okay, when you will calculate y expectation of y square, so this is equivalent to 0.6 into expectation of x is x1 square plus 0.4 and expectation of x2 square, ये इसके इक्वल होगा। अब 0.6 into expectation of x1 square equal to 1 and 0.4 expectation of x2 square equal to 6. So this is equal to 2.4 plus 0.6 and this is equal to 3. And your expectation of y equal to 0. So your variance is nothing but your variance is equal to, variance of y is equal to expectation of y square
तो दिस इज इक्वल टू 3। एकता बात समझ में आई? यस सर, यही किया था मैंने, अभी भी यही किया था हाँ, ये स्टेप पूरी थी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हाई दिस इज इक्वल लेमडा प्लस लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2। अब मैं देखो जनरल बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं जनरल में। सपोज करो y एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो कि लेमडा x1 दिस इज द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन 1 माइनस लेमडा x2। So high expectation of y to power r is equivalent to expectation of lambda expectation of x1 to power r. This is equal or not equal? पहले तो ये बताओ this is equal or not equal? इक्वल है सर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होगा सर, वेरिएबल जो है उस पे अप्लाई है। इसको प्रूफ कैसे करोगे? You will prove this? Anyone? ये ट्रू है, सबको पता है, लेकिन ये क्यों ट्रू है ये बताओ। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, एक दिन तुम्हारे पास है, कल प्रूव करके आना, कल सोच के आना इसमें कि क्यों ट्रू है। अगर अभी बता दूंगा तो तुम लोगों को इजी लगेगा। आईआईटी क्वेश्चन ऐसे ही उठाता है। आईआईटी हमेशा जानते हो सस्पेक्टेड चीज से क्वेश्चन उठाता है, जो कंफ्यूजिव टॉपिक होता है आईआईटी उस पर महारत हासिल किए रहता है। आईआईटी के प्रोफेसर वो लोग उसी पे ही काम करते हैं। अब इसमें आधे कंफ्यूज होंगे कि x1 x2 इंडिपेंडेंट नहीं है, कैसे सॉल्व करें। और फिर अगर सॉल्व भी करना था तो ये कैसे होता है, ये आधों को नहीं समझ में आया होगा। अच्छा, एक हिंट देते हैं, बाई एमजीएफ मेथड चले जाना, हो सकता है सॉल्व हो जाए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 57। x1 x2 so on xn, this is a random sample from exponential lambda, is a random sample from exponential lambda और lambda greater 0। इसका पीडीएफ दिया है lambda e की पावर माइनस lambda x ग्रेटर 0 अदरवाइज।
एक्स बार एन को उसने डिफाइन किया 1/n समेशन ऑफ एक्स आई एंड हियर आई गोज फ्रॉम 1 to n. ओके, देन व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. फर्स्ट उसने बोला एक्स बार इज एमएलई ऑफ लेमडा, एक्स बार एन इज एमएलई ऑफ लेमडा. सेकेंड ऑप्शन उसने दिया है 1/x बार n इज एमएलई ऑफ लेमडा, एमएलई. थर्ड ऑप्शन उसने दिया है 1/n एंड 1/xi समेशन में i इक्वल टू 1 to n. ओके, इज एमएलई ऑफ लेमडा. इनमें फोर्थ ऑप्शन उसने लिखा है 1/x बार n इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ लेमडा. अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ लेमडा. क्वेश्चन तुम्हारा एमएसक्यू है. बताओ भाई कैसे करेंगे इसको. सेकंड ट्रू है. मतलब 1/x बार n इज एमएलई ऑफ लेमडा. यस सर. और कोई बताओ. देखो इसमें एमएलई निकालना है. एमएलई मैंने लिख दिया. लाइक्लीहुड मैंने लिखा. लाइक्लीहुड के बाद मैंने लाग लाइक्लीहुड लिख दिया. लाग लाइक्लीहुड के बाद मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया. ये लाग लाइक्लीहुड है. यहाँ डिफरेंशिएशन किया. डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू लेमडा. जब 1 को लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ n बाई लेमडा आएगा और यहाँ माइनस समेशन एक्स आ जाएगा. इसको 0 की इक्वल पुट करोगे. लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो एमएलई हो जाएगा. लेमडा की वैल्यू क्या आई 1/x बार है. तो एमएलई जितने दिए हैं 1 3 ये तो वैसे ही फॉल्स हो गए. अब लास्ट 4 ऑप्शन देखते हैं. 4 ऑप्शन उसने बोला 1/x बार n दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्वल उसने बोला लेमडा की. तो ये प्रूव करो. जब तुम ये फाइंड करोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x बार n तो ये कैसे फाइंड होगा बताओ. दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई n. और जब तुम n को ऊपर ले जाओगे तो n कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई. अब समेशन एक्स आई को y टेक करो. y इक्वल टू समेशन एक्स आई. तो समेशन एक्स आई क्या फॉलो करेगा. गामा. गामा n गामा लेमडा and this PDF is equal to e to power minus lambda x के पावर n minus 1 divided by gamma n lambda to power n. यही होगा ना. बोलो. और जब तुम इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/y फाइंड करोगे तो ये आएगा तुम्हारा किसके इक्वल. ये आएगा तुम्हारा यहाँ y टेक करो. ठीक है, कंफ्यूज मत हो. y एंड y ये तुम्हारा इक्वल आएगा y के पावर n minus 2 e के पावर माइनस लेमडा y and here is your constant is lambda के power n upon gamma n. This is 0 to infinite d of y. बोला होता है बीटा अपॉन अल्फा वैल्यू इसमें. So this is equivalent to gamma n minus 1 divided by lambda to power n minus 1 and here already multiply c. c is what lambda to power n upon gamma n.
So this is equal to lambda lambda sorry lambda and divided by n, lambda by n आएगा. Okay, so here this is equivalent to n into lambda by n. So this is equivalent lambda or not? This is equivalent lambda. तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर भी तो है. सर एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन आई सर गामा में होता है सर बीटा अपॉन अल्फा माइनस 1. क्या क्या बोला? सर ई ऑफ 1 बाई वाई सर गामा में सर बीटा अपॉन अल्फा माइनस 1 फॉर्मूले में सर होता है. सर बीटा लेमडा है यहाँ पे और अल्फा एन है तो मतलब लेमडा अपॉन एन माइनस 1. लेमडा अपॉन n माइनस 1 होगा. सर मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सर फॉर्मूले याद है मुझे. ठीक है, एक बार और कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा. वैसे भी होता तो नहीं है क्योंकि लेमडा का जो वो होता है एन अपान एक्स बार होता है ना, n माइनस 1 अपान एक्स बार ना. ठीक है, एक बार और कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y 1 अपान वाई कैलकुलेट करना है. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 टू y एन लेमडा टू पावर n डिवाइड बाई गामा n एंड e के पावर माइनस का लेमडा y एंड y के पावर n माइनस 1. दिस इज गामा. Well, this is gamma. This is PDF of gamma, and you multiply 1 upon y also, and d of y. Okay. So this is equal to lambda to power n upon gamma n, and e to power minus lambda y, and y to power n minus 1 minus 1. Okay. And you integrate 0 to infinite d of y. Okay. What is the value of this gamma function? This gamma function is nothing but this is equal to gamma n minus 1 upon lambda के power n minus 1. Okay. This is lambda to power n upon gamma n. Okay, well. Okay, this is equivalent to lambda, and this is equivalent to n minus 2 factorial, and this is equal to n minus 1 factorial. So when you calculate, this is equal to lambda upon n minus 1. Okay. Okay, this is lambda upon n minus 1. Because gamma, okay, because gamma n minus 1 is equal to, because gamma n plus 1 is equal to n gamma n. Gamma n plus 1 equal to n gamma n. Okay. This is formula, and I am writing formula here wrong because I take this is a factorial. I think this is a factorial, but this is a gamma function. Okay, so gamma n plus 1 equal to n gamma n. So this is lambda upon n minus 1, and here lambda upon n minus 1. So you will get n lambda upon n minus 1. This is not equal to lambda. देखो यहाँ मैंने एक्चुअली में उस बार थोड़ा कंफ्यूजन में टेक कर लिया था कि ये फैक्टोरियल है, बट दिस इज अ गामा फंक्शन. दिस इज माय मिस्टेक. So this is gamma function. So gamma n plus 1 equal to n gamma n. So gamma n equal to gamma n equal to n minus 1 gamma n minus 1. Gamma n minus 1 gamma n minus 1 cancel out. Otherwise you take gamma n. This is also equal to n minus 1 factorial. If you are practice with factorial, this is equivalent to factorial in this gamma n equal to n minus 1 factorial. Okay. So if you are practicing factorial, you always change the gamma n factorial. Okay. Here I am change the gamma in factorial, and this is your expectation. So here only one option true. This is that is 2. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सन कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स देन व्हाट. Which of the following condition implies that action converge in distribution to x? बताओ भाई. अगर एक्शन कन्वर्ज करा डिस्ट्रीब्यूशन एक्स में तो इसका मतलब क्या है? बताओ. पहला बात तो इसका मतलब ये होता है कि फाई ऑफ एक्सन टी this is converge in phi of xt. Otherwise mgf of x and t converge to other f of
x in t, f of x in x, this is converges in f of x. बताओ, अब ये बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी होगा कि नहीं? नहीं, सो क्योंकि x अगर कांस्टेंट होगा तभी होगा, तो यहाँ पे x के बारे में बोला नहीं। ठीक है, अगर एक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्ज इन स्क्वायर होगा कि नहीं? कन्वर्ज इन मीन ऑफ स्क्वायर, या फिर एलपी नार में कन्वर्ज होगा या नहीं? नहीं सर, बताओ, सर थर्ड ट्रू है बस, सर थर्ड ट्रू है बस, सेकंड ट्रू होगा या नहीं? फॉल्स नहीं सर। ओके, तो अगर एक्शन तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज कर रहा है तो ये एलपी नार में कन्वर्ज नहीं करता। अब यहाँ समझ लो, अगर एक्शन तुम्हारा इन कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स है, दिस इम्प्लाइज एक्शन कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स। अगर कांस्टेंट में कन्वर्ज कर रहा है, अगर एक्शन कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू सी सी ज कांस्टेंट, ये बहुत होगा, ठीक है, ठीक है। अगर एक्शन कन्वर्ज प्रोबेबिलिटी पे कर रहा है तो एक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज करेगा, ये फाइन है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज कर रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज नहीं करता। अगर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं करता तो एलपी नाम में कन्वर्ट नहीं करेगा। एलपी नाम का मतलब होता है पी टाइम्स यहाँ स्क्वायर ही है तो ठीक है, स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एलपी नाम का मतलब पी, अगर पी वहाँ हो जाता है, ठीक है, जहाँ 2 है, तो इसमें ओनली थर्ड ट्रू हुआ। कौन सा ट्रू हुआ? मतलब थर्ड ही, सेकेंड ट्रू हुआ, थर्ड ट्रू हुआ इसमें ना, इसमें ओनली ऑप्शन थर्ड ट्रू हुआ। सी एस अगस्त, असम का, असम रीजन का पेपर है ना, असम 2000 एक सेकंड वेट करना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारा xi रैंडम वेरिएबल है एक डिस्ट्रीब्यूशन f से, इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, 59 पे, 59 पे लिखा है क्वेश्चन, कह रहा है कि x1 x2 ये सारे रैंडम वेरिएबल हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं f को, ठीक है। बोला लेट yn इक्वल टू मिनिमम ऑफ, लेट yn इक्वल टू मिनिमम ऑफ x ऑर्डर 1, x ऑर्डर 2, सो ऑन x ऑर्डर n, या तो इसको ऐसा नोटेशन दे दो तुम x ऑर्डर 1, सॉरी यहाँ x ऑर्डर 1 नहीं, मिनिमम ऑफ x1 x2 xn दिस इज इक्विवेलेंट टू x ऑर्डर 1, ओके। इफ n yn कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1/2। अब उसने बोला कि n yn जो है ये कन्वर्ज कर रहा है इन डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपोनेंशियल 1/2, तो उसमें बोला देन f कुड बी, f तुम्हारा हो सकता है, देन f इक्वल टू, f कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा बताओ भाई, नॉर्मल 0 1, यूनिफॉर्म 0 1, यूनिफॉर्म 0 हाफ, यूनिफॉर्म 0 2, बताओ। ओके, पहले इन जनरल प्रूव करते हैं। अगर मान लो कि एक्स आई तुम्हारा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म जीरो, एक एक्स आई तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन है आई आई डी 0 ए से, आई आई डी 0 से, देन मुझे बताओ मिनिमम ऑफ एक्स ऑर्डर 1 क्या फॉलो करेगा, ये क्या होगा, ये क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है तुम्हारा बीटा एक्स ऑर्डर 1 डिवाइड बाई ए, दिस फॉलोज बीटा फर्स्ट काइंड 1 कामा n एन। ओके, इसको लिखो तुम, पहले तुम एन एक्स ऑर्डर एन का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो, एन एक्स ऑर्डर 1 का तुम पीडीएफ फाइंड करो। तो जब इसका तुम पीडीएफ पीएमएफ वो फाइंड करने जाओगे तो एफ ऑफ एन एक्स ऑर्डर 1 लिखोगे, दिस इज लेस इक्वल टू, दिस इज लेस आर इक्वल टू स्मॉल वाई, यही करोगे ना। सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑर्डर 1 लेस आर इक्वल टू वाई बाई एन, बोलो यही लिखोगे ना। ओके, सो ओके फाइन, यहाँ पर n का भी मल्टीप्लाई है ना, सो इस ये एक्सपोनेंशियल चला जाएगा। अब तुम ये बताओ, यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर तुम्हारा जो x ऑर्डर 1 आया वो क्या फॉलो करेगा, x ऑर्डर 1 डिवाइड बाई a, ये फॉलो किया तुम्हारा क्या, ये फॉलो किया तुम्हारा बीटा फर्स्ट काइंड 1 कामा n, 1 कामा n। ओके, सो हियर योर a इज पॉजिटिव, हियर a पॉजिटिव होता है ना, a तुम्हारा पॉजिटिव होता है, a ग्रेटर जी, तो यहाँ f ऑफ x ऑर्डर 1 को a से डिवाइड कर लो, तो जाएगा y अपॉन एन ए, सी कोई प्रॉब्लम। अब ये x ऑर्डर 1 जो है ये बीटा 1 कामा n है, तो अब ये बताओ बीटा 1 कामा n है तो इसका f क्या होगा, बीटा 1 कामा n का f स्मॉल f, मतलब पीडीएफ क्या होगा, पीडीएफ बीटा ऑफ 1n 1 अपॉन बीटा ऑफ 1n 1 माइनस x की पावर मतलब n x के 1 माइनस x के पावर n माइनस 1, ये होगा पीडीएफ। अब इस पीडीएफ को 0 to x में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आ जाएगा सीडीएफ, सीडीएफ तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 माइनस x के पावर n, यही होगा ना सीडीएफ, बताओ। ये सीडीएफ, ये पीडीएफ था, ये यहाँ पीडीएफ मत, ये सीडीएफ लिखो, सीडीएफ, तो 1 माइनस एक्स के पावर n, तो याद आएगा 1 माइनस वाई बाई एन माइनस ए के पावर n,
ओके, आ गया, ये समझ में आया सबको ये? भाई इसका पीडीएफ फाइंड करो, बीटा वन का एन का। बीटा वन का एन एक नॉर्मल पीडीएफ होता है, मतलब नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, एन वन माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन। दिस इज अ पीडीएफ ऑफ बीटा वन का एन रैंडम वेरिएबल। ओके, अब इस पीडीएफ को तुम सीडीएफ फाइंड करना, 0 से x के बीच इंटीग्रेट कर दोगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स पर n आ जाएगा। ठीक, अब ये बच आया हमारे पास फाइनल निकल के f ऑफ n x ऑर्डर 1, दिस इज लेस आर इक्वल टू y, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस y अपॉन n a के पावर n। ओके, सो आई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट में जब करूंगा, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब मैं यहाँ लिमिट लगा रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगेगा, तो ये क्या आएगा, ये पीडीएफ तुम्हारा निकल के आएगा e के पावर माइनस y बाई ए। एक चीज गलत मैंने लिखा है कहीं, ये गलत है मेरे हिसाब से, ये 1 माइनस होगा, यस, बिकॉज 1 माइनस एक्स पर एन दिस इज इंटीग्रेशन, जब वैल्यू तुम पुट करोगे तो 1 माइनस एक्स होगा, तो यहाँ ये 1 माइनस आएगा, यहाँ भी 1 माइनस आएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पर भी 1 माइनस आएगा, तो 1 माइनस, तो 1 माइनस ई के पावर माइनस वाई बाई ए गया, तो ये मतलब क्या हुआ, ये क्या है, अब उसने बोल दिया है, देखो ये इन जनरल आया, इन जनरल ये किसका सीडीएफ है, एक्सपोनेंशियल का ही तो है ये, बोलो, ये एक्सपोनेंशियल का ही तो है, एक्सपोनेंशियल 1 बाई ए का है, ठीक है, तो उसने बोला है कि एक्सपोनेंशियल मीन हाफ, अगर मीन हाफ होगा, मीन हाफ होगा, तो मीन अगर हाफ होगा तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, 2, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, 2। ओके, एक्सपोनेंशियल हाफ का जो सीडीएफ होगा मीन हाफ का, ये होगा e के पावर माइनस 2x, यही होगा ना सीडीएफ एक्सपोनेंशियल वाले का, सीडीएफ यही होगा, तो यहाँ a की वैल्यू जो है वो 1/2 है, तो ये यूनिफॉर्म 0, 1/2 को फॉलो कर जाएगा, तो ये एक्स आई जो है तुम्हारा, ये फॉलो कर जाएगा तुम्हारा यूनिफॉर्म 0, 1/2। अब जो ऑप्शन इसमें हो वो तुम देख लो, तो इसमें थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड 2 हो जाएगा। मैंने इन जनरल ए को लेकर बताया, ए की जगह तुम थीटा भी टेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, थीटा टेक करोगे और अच्छा रहेगा, क्योंकि थीटा एक पैरामीटर होता है, ए तो कोई जनरली हम यूज नहीं करते ए को, तुम थीटा ही टेक कर लो, थीटा इज अ सिंबल ऑफ पैरामीटर। ओके, यूनिफॉर्म 0, थीटा एंड थीटा, 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 थीटा एंड दिस थीटा। ओके, अब बताओ भाई, इसके आगे नहीं कल करेंगे, यहाँ तक सबको समझ में आया, क्लास को अब यहीं पर एंड करेंगे, बाकी कल करेंगे, ठीक है, ओके, Okay. Thank you. ओके।